bonds. Same molecular formulae and chemical bonds, but have different spatial. I'm writing it down. Different spatial means in space. Yeah, spatial, whatever you pronounce it as. Spatial ही करना है. मैंने spatial ही करना है. But have different spatial arrangement of atoms. इनको क्या बोलते हैं हम? Stereoisomerism. ठीक है. Molecular formula same है. Chemical bonds भी same है. But space में atom के arrangement में they will differ. अब लिखो it is of two types. First one is geometrical isomerism. So what are geometrical isomers? सबसे पहले बात करनी पड़ेगी किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. लिखना पॉइंटर. It arises in heteroleptic complexes. It arises in heteroleptic complexes due to ligands occupying complexes. Due to ligands occupying different positions around the central metal ion. Due to the ligands occupying different positions around the central metal atom or ion. याद है cis and trans? Yes, sir. So what is cis? When the similar atom or group of atom will be on one side, Yes, sir. and when the similar are on the opposite side. अब इसके नीचे headings बनेंगी. लिखना A, geometrical isomerism in complexes. Geometrical isomerism in complexes with coordination number 4. Geometrical isomerism in complexes with coordination number 4. So if the coordination number is 4, what will be the geometries? Tetrahedral and that's good. So if the coordination number is 4, we have two geometries, tetrahedral and square planar. Write down. Complexes with coordination number 4 have two geometries, tetrahedral and square planar. ठीक है. अब ये देखो, this is ये कौन सा है? Now tetrahedral complexes, they do not show geometrical isomerism because all the 4 positions are they are adjacent. And अगर आप इन चारों में से ligands की position को interchange भी करो, no new geometry arises, no new arrangement arises. अगर मैं अब L1 को यहाँ पे ले आऊं और L2 को यहाँ पे ले आऊं, so I'm not getting a new thing. ठीक है. So tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism. So write down tetrahedral complexes
do not show geometrical isomerism because all the four positions are adjacent. All the four positions are adjacent. तो कौन से बच गए अब? So write down now square planar complexes. Square planar complexes square planar complexes with type 1 complexes of the type Ma2B2. Then what are A and B? Unidentate, monodentate ligands. Example, इसका एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम, ठीक है. सो प्लेटिनम Cl2 NH3 twice. Check whether does it match up with the जनरल फॉर्मूला आई हैव गिवन. अब इसका हमने सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना है. सो प्लेटिनम एट द सेंटर, if the two NH3s are on the same side, square planar geometry है ये, and the two Cls are on the same side, this isomer will be cis. और इसको हम ये बोलते हैं, it's a very important common name, cisplatin. No doubt इसका IUPAC name is different. It is used for the treatment of cancer. cisplatin. और ये, और अब इसी का अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो 1Cl here, another here, NH3 here, and NH3 here. Cisplatin. This is transplatin. This is pale yellow colored complex. This is dark yellow complex. You can well imagine just the 3 dimensions में. अब फर्क क्या है दोनों में बताओ? Do they have the same molecular formula? They will have same chemical properties also. फर्क सिर्फ है central atom के around how the ligands are arranged. Just imagine it in the 3 dimensions. Central atom के around, if the 2 ammonias are on one side and the 2 chlorido are on other side, and if they become totally opposite to each other, we generate a new arrangement which are called as cis and trans. I hope I am understood here. अब मुझे बताना, अगर मैं NH3 को यहां लगा दूं और Cl यहां कर दूं, will it be cis? Yes. ऐसा नहीं कि लेफ्ट को बनाए मैंने दोनों तभी cis आएंगे. If 2 are on this side and 2 are on this side, then also it is cis. So it is of the type Ma2B2 where A and B are monodentate ligands. Dotted lines are just to represent the geometry, ताकि आपको एक स्क्वायर सा नजर आए. These are the, ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो आगे जाके पता लगेगी, राइट? आगे जाके हमें 3 थ्योरीज करनी है इस बॉन्ड से रिलेटेड, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड CFT. These lines are just imaginary lines to represent the geometry. क्लियर हुआ ये? अब लिखो सेकंड, complexes of the type Ma2BC. Ma2 यानी कि 2 ligands are same and these 2 will be different. So like we have
Br Cl NH3 twice. अब यहां लगा दिया मैंने Br. As you say, My Highness. Ma2Bc, where A, B, C all are monodendrite ligands. So two ammonias are on the same side. This it will be the cis isomer. Not this name now. And if it is NH3 here or NH3 में इधर कर दूं, and suppose the Br remains here and the Cl comes here, this will be the trans isomer. So we are calling it as cis and trans with respect to ammonia now. If the two ammonias on the same side, ये वाले दोनों अगर same side पे है तो cis, and if they are on the opposite side, it is trans. Okay. So this is the case of कौन से square planar complexes. So with coordination number 4, there are only square planar complexes which show which isomerism. इसका कोई specific name नहीं है. अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? cis and then write down this formula. PT और इसी को आगे लिख दो. Just change the cis with the trans. वो cisplatin was important, trans भी इतना important नहीं है. वो cisplatin is the word. So cis isomer is useful for the treatment, whereas trans is not. Clear हुआ ये? तो तुम अपने आप देखो, एक cis वाला जो isomer है वो आपके लिए beneficial हो सकता है, trans में भी harmful to you. That is just how the arrangement of atoms can make difference to the properties. Done. अगला coordination number कौन सा? इसमें एक और लिख लेते हैं, लिखना third. Complexes of the type MAB2. Where what is AB? It's a bidentate unsymmetrical ligand. Because अगर मैं दोनों को AA show करूंगा, it will be symmetrical bidentate. It is unsymmetrical bidentate ligand. Try to give an example. Anyone? वो symmetrical है. It's all symmetrical. Glycinato. That's right. So ये इसका नाम बोलो. बीच नहीं आएगा. Glycinato में there is no numerical value being indicated. Diglycinato platinum 2. So सबसे पहले ये चीज बना लो. तुम्हें लगता है कि coordination number 4 है ये. Let's make cis out of it. ये अगेन ज्योमेट्री शो किया जा रहा है. देखो, इट इज डोनेटिंग थ्रू नाइट्रोजन हेयर एंड ऑक्सीजन नेगेटिव वाला. ठीक है. देन NH2 CH2 ये जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट. जो ये डैश लाइंस है जस्ट ज्योमेट्री शो कर रहे हैं. यहां पर देखो, टू सिमिलर काइंड ऑफ डोनर एटम्स ऑन द सेम साइड. टू सिमिलर काइंड ऑफ द डोनर एटम ऑन द सेम साइड. दिस विल बी सिस. और जब मैंने इसको ट्रांस बनाना है तो आई एम गोइंग टू फ्लिप इट. एक को मैंने सेम रखना है, दूसरे को मैं फ्लिप कर दूंगा. उस ये वाला ग्रुप मैं यहां ले आऊंगा और NH2 आई विल ब्रिंग इट हियर. NH2 will become trans to each other.
पहले सिस बना लो, ये समझ आया? ये एक बार तो मैं लिगेंड शो कर देता हूं। NH2CH2, ये है ग्लाइसिनेट हो। तो C डबल बॉन्ड O को मैं प्रॉपर बॉन्ड शो कर रहा हूं। ये सुनो, और ट्रांस अपने आप बना लो। एक साइड को सेम रहने दो, फ्लिप द सेकंड लिगेंड। इसी को शो किया है मैंने, जो ये ग्लाइसिनेटो है। बस फॉर्मूला लिखना है, बस इसके आगे सिस लिख दो एंड व्हेन यू रिवर्ट इट। अब क्या करेंगे, यहां पे आ जाएगा सी, सॉरी ये आ गया O, एंड हियर इट विल कम एज NH2। ओके है? सो अब क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। अब इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इट कैन एग्जिबिट। जस्ट हैव अ लुक एट द कॉम्प्लेक्स, नाम आ जाएगा। फिर इसके फॉर्मूला को ढंग से एनालाइज करो कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। पहले दिख रहे हैं चार जो स्ट्रक्चरल किए। कैन इट बी अ केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? नो। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? एक नेगेटिव आयन अंदर बाहर होना चाहिए और एक अंदर होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी इंटरचेंज्ड। अगर इसको लिंकेज शो करना था तो एम्बिडेंट होना चाहिए था। सॉल्वेट शो करना था तो वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए था। और कोऑर्डिनेशन शो करना था तो दोनों कैटायन एज वेल एज एनायन शुड हैव बीन कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद डू आई सी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैपनिंग हियर? तो आई सी अ unsymmetrical bidentate ligand whereby flipping the position of the one of the ligands I can generate the trans positions to each other. So similar kind of donor atoms, the word is similar kind of donor atoms trans to each other, and when the similar kind of donor atoms are cis to each other, you generate cis and trans isomers. Right? That is about coordination number 4. अब लिखो coordination number 6. Coordination number 6 में all complexes are octahedral. So write down first A type. Complexes of the type MA4B2, यानी कि एक लिगेंड इसमें 4 बार आएगा। और इट कैन बी ऑपोजिट ऑल्सो, MA2B4। ऐसा नहीं सोचना कि A ही 4 बार आएगा, B भी तो आता है 4 times and A can come 2 times. Try to write down example first. और यहां पे फिक्स्ड है कोबाल्ट और क्रोमियम को सेंट्रल एटम लो। कम ऑन एग्जाम्पल। हाँ क्या? H2O।
और दूसरा कौन सा लेना है? H2 आ सकता है इन प्लेस ऑफ NH3 पर राइट डाउन H2O। मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और ऐसा नहीं है कि 4 वाला पहले ही होना चाहिए, हमारे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है। Why is Cl written before NH3? Cl is sided with C and NH3 with N. So let us make the cis and trans. कोबाल्ट सबसे पहले जब आप, हाँ अगर पूछा जाएगा तो कर लेंगे इस क्वेश्चन इस टाइप का। अगर आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आपको बनाना पड़ेगा उसका सिस एंड ट्रांस। सो NH3 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 एंड NH3, और ये आ गया Cl, ये आ गया Cl और ये आ गया पॉजिटिव। और जब इसका ट्रांस बना रहे हैं, सुन लो पहले, इस Cl को उठा के यहां लगा दो और NH3 को यहां लगा दो। अब देखो यहाँ पर 2 Cls are on the same side. What if this Cl comes here? The 2 Cls are opposite trans to each other. That become the trans isomer. ये लगाए Cl2 and you have NH3s on these 4 positions. ये this is the trans. हो गया? ट्राई टू मेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बना लो कंपाउंड का और इस टाइप का। जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड जिसमें मेटल को चेंज करो और लिगेंड्स को चेंज करो और द स्ट्रक्चर्स विल बी सेम। राइट डाउन। क्रोमियम ले लिया, Fe ले लेते हैं, Fe आयरन, और Cl ले लिया मैंने 4 बार, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 बता चाहिए। अब आपको पता है ये -4 बना चुका है, -4 बना चुका है, तो यहां पर आयरन तो +4 में आ गया यहाँ पे। ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया ऊपर, नहीं -1 नेगेटिव लगा देता हूं मैं यहाँ पे। अब हमारे को लेना पड़ेगा न्यूट्रल लिगेंड। बोलो H2O और न्यूट्रल बोलो कोई। NH3 ले लेते हैं ना, चलो H2O ले लो, H2O ट्वाइस। ये Cl, ये -4 पहले बना रहा है और Cl बना लेगा, टोटल -6 बन जाएगा ये। ठीक है, पर उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। ये देखो
Cl करें अगर ये Cl2 कर दिया तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया -6, तो आपको ऊपर 3 नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना है इसको। ये क्या बन गया, K3FeCN4। अब बताओ चल जाएगा। अब ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज एनायोनिक, और ये जो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है पोटाशियम इज कैंसलिंग इट आउट, तो ये बन जाएगा आपका एग्जाम्पल। +3 क्यों होगा, देखो ये कितना चार्ज हुआ -4, प्लस ये कितना हुआ -2, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना बन गया। और मैं आयरन को लेके चल रहा हूं +3, तो +3 ने इसमें से कैंसिल किया, बच गया -3, वो यहां पे आएगा ना, उस -3 को कैंसिल आउट करने के लिए काउंटर आयन आएगा पॉजिटिव। यू अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकली कुछ भी बना दो, अगर आयरन को रखना है तो +2 या +3 में रखना पड़ेगा, बट कोबाल्ट और क्रोमियम आपको पता है +3 में रहेंगे। क्लियर हुआ ये। अब लिखो सेकंड टाइप, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma3B3। Ma3B3 मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप ये पहले दो केसेस है वेरी इंपॉर्टेंट, बनाओ इसका एग्जांपल पहले इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले ऐसे देखो इसको, आई एम टेकिंग देम एज A and B। ये बना लिया, चलो पहले इस चीज को देखो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इट। ये देखना, अब ये देखो, इज इट वन ऑफ द ट्राइंगुलर फेसेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स the another triangular face of the octahedron. So when similar ligand occupies one of the triangular faces of the octahedron and the similar ligands occupy, ठीक है, this isomer is called as and abbreviated as, right? Then ये बाकी लगा दो, रुक जा पहले 1 मिनट। अब ये देख रहा, जस्ट हैव द लुक, ये
ये 3 ligands they are present on one of the equatorial plane of the octahedral. यहाँ पे the similar ligands are occupying the triangular face and here they are occupying, इसको मेरिडियन बोलते हैं. और देखो सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट अलोंग द मेरिडियन, ये हो गए ना एक दूसरे के ट्रांस. ठीक है, सो दिस बिकम्स ट्रांस. ये देखो ये दोनों मैंने ट्रांस कर दिए, तो आई मेड इट क्वाइट अ ट्रांस टाइप ऑफ. और ये आपका है सिस. इट गेट्स अ न्यू नेम हियर. It is called as meridional, or we abbreviate it as MER. पहले अपने आप ऑब्जर्व करो इसको. ऑक्टाहेड्रॉन जो होता है उसके 2 फेसेस है. देखो, if similar ligands occupying one face, the another face, it is cis isomer having this name. And if the similar ligands are occupying they are present along the meridian of the octahedron, it becomes, so you just interchange them and you can make it. ये important है बहुत ज्यादा. So पहले लिख लो, write down, पहले लिख लो. ये trans है, it gets this name. So write down, when 3 ligands, यानी कि similar ligands, when 3 similar ligands are on the same triangular face of the octahedron, are on the same triangular face of the octahedron, the isomer is called as facial. And when similar ligands are on the same equatorial plane, when the similar ligands are on the same equatorial plane, it is called as meridional. ठीक है, एग्जाम्पल, COCl3H2O3 चल जाएगा. ये मैराडोना लिख ले. एक एग्जाम्पल बना लो अपने आप. हाँ, जब मैं NH3 लगा रहा इसको H2O चाहिए था, अब मैंने H2O लगाया तो और CrNH3 thrice, NO2 thrice. ये भी there are so many. कोबाल्ट और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए और A और B मोनोडेंड्रेट लिगेंड होने चाहिए. तो यहां आ जाएगा Cr NH3 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 NO2 NO2 एंड NO2. बस सिंपल सा लॉजिक लगाओ. जब ट्रांस बनाना है, ये वाला बनाना है, तो इस और इस पोजीशन पे सिमिलर लगा दो और इस पे सिमिलर लगा दो. बच्चे हुए हैं उनको तो यही आना पड़ेगा. इन तीन में से NH3 इधर NH3 इधर, इन 3 में से NO2 इधर NO2 इधर, और जो एक NH3 और NO2 बचा है दे आर हियर. और जब ये वाला बनाना है तो ये वाला फेस NH3 NH3 NH3, ये वाला फेस NO2 NO2 एंड NO2. ओके है, ये है, ये देख लिया. NH3 3 है, उनसे 2 उठाओ. एक NH3 इधर लगा दो, एक NH3 इधर लगा दो. एक NH3 बच गया ना, बाद में देखेंगे. NO2 3 है, उसमें से एक NO2 यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया.
अब एक NH3 बचा और एक NO2 बचा, राइट है? नहीं, ये पेपर से जाता है, पेपर में आएगा, मार्क से होगा नहीं, फिर चला गया। आ सकता है। आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन मैं बताऊं, कॉम्पिटिटिव में कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड चैप्टर है फॉर कॉम्पिटिशंस। आइसोमेरिज्म पे आपको CBSE में क्वेश्चन आए ना आए, इन कॉम्पिटिटिव यू आर गोइंग टू गेट इट डेफिनेटली। वो चीज, इसके फॉर्मूलाज हैं कि एक कंपाउंड कितने आइसोमर्स बना सकता है, दैट वी विल टेक व्हेन आई विल टेक द ऑर्गेनिक विद यू। ऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म आएगा ये, बट अभी आप एक बार जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी टाइप का आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में आएगा, और नेम्स विल ओनली बी सिस एंड ट्रांस देयर। यहां पर तो ये नया नेम आ गया। अब बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो केसेस, A4B2 और A3B3, इसको छोड़ के कोई और केस बनाओ। अब लिखो थर्ड, कौन से? A4B2। ये देखना, इस पे बनेगा कुछ। पहले इसे एग्जाम्पल ही बनाने की कोशिश करो। व्हाट इज AA? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। चलो पहले इसका एग्जाम्पल बनाओ, एंड देन ट्राई योरसेल्फ मेकिंग द सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ इट, where AA is symmetrical bidentate ligand. हाँ, इसमें न्यूट्रल ले ले, सिमेट्रिकल होना चाहिए। कॉपी तेरी केमिस्ट्री की है ये, मेरे को लग रही। हाँ, किस चीज की है? फिजिक्स की। फिजिक्स की बनाई है? फिजिक्स की क्लास में बैठेगा केमिस्ट्री लेके? तेरा स्कूल कौन सा है? 22 शिशु। 43 में भी है। 43 वाला तो जबरदस्त है। स्कूल तो 37 मॉडल है ना? तो एग्जाम्पल, CR NH2 तो एक मोनो है। NH2 नाम की चीज दुनिया में देखी नहीं गई है अभी तक। NH2 है वो एमाइडो, वो मोनोडेंटेट है। कुवाड़ ले लो। क्रोमियम, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, कोबाल्ट और क्रोमियम पे स्टिक करना है, बाकी ज्यादा पंगे लेने नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आयरन पे जाना है। 3 है ये। अब बनाओ सिस एंड ट्रांस इसके, ट्राई मेकिंग इट, एंड आई एम वेरी श्योर आई एम गोइंग टू फाइंड सम गुड थिंग्स। बहुत मजा आएगा। अगर मैं मूवमेंट कर सकता ना, आई कुड हैव एंजॉयड अ बिट। मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेटली। बना दिया तूने वैसे वाला ना? नहीं,
गाइस व्हाइट कैप की मिस्ट्री समझ नहीं आती मेरे को, और कलर भी चेंज नहीं होता कैप का। सो क्रोमियम, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना, मुझे पूरा डाउट है तुम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना के रख दोगे, बिकॉज तुम EN को कैसे लिखूं मैं? EN करना बस, ठीक है, गुड। अब ये देखो EN ऐसे लिखना है, EN बिकॉज EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इट विल बी फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, और एक EN सपोज मैं यहां लगा दूं, लिखना ऐसे ही पड़ेगा तुमने। NH2CH2CH2 NH, उसी को अवॉइड करने के लिए तो ये किया है, और ये आ गया Cl, ये आ गया Cl पॉजिटिव, विच EN 2 बार कैसे लिखेंगे तुम? देख रहा, यू आर सेइंग Cr, ये EN तो बाइडेंटेड है ना, ये है ना EN, NH2 CH2 है ना, तो ये यहां से भी बॉन्ड बनाएगा, यहां से भी बनाएगा, तो इस पूरे को EN इमेजिन कर लो। अब ये यहां से भी बॉन्ड बना रहा है और इधर से भी बना रहा है, दैट्स व्हाट आई एम शोइंग। तो ये क्या है? दिस इज NH2, हियर CH2 CH2 NH2, ये सिस और ट्रांस, हाँ तो इसी का आएगा, इसी के बनने ऑप्टिकल भी। और this is cis, agreed or not? The two Cls are almost same side and they are also the similar donor atom, NH2 NH2 same side पे हो गई। अब जब इसका ट्रांस बनाना है तो सबसे पहले 2 Cl ऑपोजिट लिख दिए, and now the 2 ENs also opposite. This is trans. Yes or no? अब अपने आप देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, और इसको देख के अपने आप इमेजिन करो कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें फिट हो सकता है। यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स, सारे देखने हैं कि विच आर देयर। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मिल सकता है अगर यहाँ BR वाला लगाया होता मैंने, पर वो नहीं लगाया, तो नॉट द केस फॉर द टाइम बीइंग। और ना इसमें लिंकेज का चांस है, ना सॉल्वेट, ना कोऑर्डिनेशन, सो आई एक्सपेक्ट ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस फॉर द टाइम बीइंग। ओके है ये? और कोई एग्जांपल किसी के पास? ऑक्सिलेटो का बनाया किसी ने? ऑक्सिलेटो भी तो आ सकता है। सो इसको कोबाल्ट कर देते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाना। इसमें हमारे को एनाइन बनाना पड़ेगा, लिगेंड कॉम्प्लेक्स COOX twice. It gives it 4 negative. Cobalt has to be +3. सर एक वो लगाना पड़ेगा न्यूट्रल, पोटेशियम। देखना ये आएगा, यहां से चार्ज की तरह बना -4, और यहां पे माइनस बचा, सिर्फ यहां से -4 जनरेट हुआ, और यहां पे माइनस बचा, +3 आ जाएगा। तो आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक ये क्या +3 में आ गया ना कोबाल्ट। देखो ये आया +1, इसको मैं लेना चाहता हूं
+3 में ये आ गया 2 × -2 ये दिस इज ऑल टू बी सीन। तो अब मुझे अगर कॉम्प्लेक्स में के नहीं शो करना है तो इधर मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज आइसोमेरिज्म में बन जाएगा क्या नहीं करेक्ट। पहले वाले में प्लस था ना, तो अलग केस था, बिकॉज उसमें EN वाज अ न्यूट्रल लिगेंड। अब यहां लिगेंड इज अ नेगेटिव लिगेंड, राइट और नॉट? डोंट लुक एट दिस आयन, आप अंदर वाले को देखो। सो इट फिट्स एट Ma2B2, नॉट A2, AA2। बन जाएगा कि बना के दिखाऊं इसको? बन गया ना, जहां पे EN लिखा था वहां पे ये दिस इज OX हेयर, कोबाल्ट कम्स और क्या लिया हुआ आपने? न्यूट्रल NH3 ये, और यहां पे नेगेटिव। अब इसी को ट्रांस कर लो। क्लियर हुआ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर सिमिलर इन, शाबाश, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर सिमिलर इन, आगे डैश है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन, no, they differ in the arrangement of the ligands around the central atom. If the similar ligands are occupying the similar side cis, and if they are on the opposite side, it is trans. Okay. अब क्या बच गया? Optical. ऑप्टिकल में बस रोटेशन। Write down. Optical isomerism. Optical isomerism ठीक है। Anyone? जिसमें रोटेशन हो फिर उसका मिरर इमेज फॉर्म हो, फिर Leave everything aside. अब सुनना मुझे 10-15 मिनट्स के लिए। सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि what does this word means, and forget the word isomerism. What are optically active substances? ठीक है, सुनना। This is the source which is producing light, like let it be the bulb, and this source is producing polychromatic light. Polychromatic light means this has many colors. अब इसमें 7 colors है ना ये. So this source is generating polychromatic light. So this will be passed through a polarizing filter. Just listen. जैसे one of the example लिया मैंने निकोल प्रिज्म। अब जब ये लाइट निकोल प्रिज्म में से पास की, अपने आप देखना what you get. Out of the multi vibrations, it has only one now. It means all other colors have been absorbed here. सिर्फ एक wavelength पास की. Now this light is called as plane polarized light, or we can call it as monochromatic light. So when I have to study the optical isomerism, जो मैंने लाइट पास करनी है उसके अंदर सिर्फ जैसे रेड है, सिर्फ एक वेवलेंथ होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी व्हाइट और अ मिक्सचर. सो ओनली वन वेवलेंथ, ओनली वन प्लेन. ठीक है. अब ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट आई विल पास थ्रू द सैंपल. यहां पे मैंने
कंपाउंड लिया है जिसका मैं क्या स्टडी कर रहा हूं, ऑप्टिकल बिहेवियर. So this is a sample. It may be an organic sample or it may be an inorganic sample. For the time being, it is inorganic sample. I'm studying coordination compounds. After passing through the sample, the plane polarized light passes like this. It means this sample is optically inactive. जैसा प्लेन था उसी प्लेन पे पास कर गई, इसका मतलब है सैंपल ने लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं किया. तो जो ये वाला सैंपल है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये है ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है. बट सपोज ऑन पासिंग थ्रू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इट बेंड्स टुवर्ड्स, देखो ये थी, ये इसका प्लेन शो कर रहा हूं मैं, एंड नाउ इट हैज बेंट टुवर्ड्स लेफ्ट. और इफ the plane polarized light bends towards right, this sample or this sample is optically active. This is optically, in this scenario the sample is optically, try to understand this first. ये देखो, let this marker be the plane polarized light. It passes through the sample like this. Sample is inactive. It passes through the sample and bends towards right. Active. It passes through the sample and bends towards. अब ये दो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे. But forget everything first. Have a look at it. जब मैं ऑर्गेनिक में कराऊंगा, I will not be explaining this thing again. This is the whole setups to study the optical activity. So what are optically active substances? Which rotate the plane polarized light either towards left, or the sample which rotates the plane polarized light towards left is called as levorotatory, means towards left, and the sample which rotates the plane polarized light towards that is called as dextrorotatory. क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, किसने बताया तेरे को? ये तू ऐसे गलत कर जा रहा है. कुछ भी याद नहीं करना है, क्लास आनी है, मजे करके चले जाना है बस. Have a look at it. Ask the questions that come to your mind. हाँ, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये याद करने हैं, ये बनाने हैं. फिर एक दिन पूछेगा सर कॉपी लेके आनी है, हाँ, या चिप्स वगैरह लेके आ जाए, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाएंगे सर. है निकोल, सब कुछ करें, कुछ है क्या इसमें? देखो, जस्ट लिसन हियर. एक सोर्स है, उससे रेडिएशन निकली, उस रेडिएशन में बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं. द वेवलेंथ्स आर ऑन डिफरेंट प्लेन्स. मुझे वेवलेंथ सिर्फ एक ही प्लेन पे चाहिए, तो मैंने उसको एक पोलराइजिंग फिल्टर में से पास किया, जिसने बाकी वाइब्रेशंस को, फिल्टर के काम करते हैं, कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक ही चीज को पास करने देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग फिल्टर. After it was passed through the polarizing filter, सिर्फ एक प्लेन पे वेवलेंथ बची, मान लो ये वाली, ठीक है. पहले इस पे भी थी, यहां भी थी, देवर डिफरेंट वाइब्रेशंस. अब आप ये आपके पास प्लेन पोलराइज, अगर तुम्हें ज्यादा ये, तुम यहां से याद रखो इसको. सो व्हाट यू नीड टू नो, यू आर पासिंग व्हाट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू द सैंपल, and after passing through the sample, if plane polarized light passes as such, the given sample has no optical activity, we are not going to consider it. But if it rotates the plane polarized light either towards left by 2 degree or 3 degree, or towards right by 2 or 3 degree, these two samples are optically active. They will be a case of optical isomerism. Right?
Any other question? Panchule question पूछ. Please ask me a question. क्या बोल रहा है? निकॉल के बारे में कुछ बोल रहा था. तुम्हें तो निकॉन याद होगा ना. निकॉन भी नहीं पता तुम्हें क्या है? कैमरा की कंपनी है. हो गया. इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखना इसको. ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव. हॉरिजॉन्टल मींस 180 डिग्री. तुम इसको ऐसे शो कर रही हो. अरे आपको लेफ्ट साइड पे पूरा ऐसे हो जाए. हो जाए. इसने तो चेंज कर दिया ना इसको. कितना मर्जी चेंज करे, वो इसका एफिशिएंसी है. अगर वो जरा भी लेफ्ट या राइट में डेविएट हुआ तो सैंपल हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. अगर उसका प्लेन इसने चेंज कर दिया देन इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव. So why I'm using the word optical here? Because light के साथ ये word related है. Anybody wants to be optician, dentist? मजबूरी में तो तुम वेटनरी डॉक्टर भी बनोगे. Nobody wants to be. We hate. कौन है मेडिकल वाले? हमको ऐसे मैं वहां से लिख दूंगा दोबारा से. Dextro-rotatory. Any other question? अभी तक हमने आइसोमेरिज्म को टच भी नहीं किया. ये चीज अभी और भी टाइम लगना है इस पे थोड़ा सा. So write down substances which rotate the plane polarized light. Substances which rotate the plane polarized light are called as optically active substances. Which rotate the plane polarized light are optically active substances. Next line में the isomers which rotate the plane polarized light equally but in opposite directions are called as optical isomers. Substances which rotate plane polarized light equally in opposite directions are called as optical isomers or ये are called as optical isomers or enantiomers. टी है यार, बड़ा ढंग से लिखने की कोशिश की थी. Enantiomers. So the smallest name for optical isomers is enantiomers. है? मतलब शुरू से खराब थी. स्टूडेंट टाइम में आई यूज्ड टू हैव अ गुड राइटिंग
But over a period, I spoiled it by making it more cursive. पर overall अच्छी है, दिखने में अच्छी है, समझने में मुश्किल कुछ वर्ड्स हैं, बट आई डू ट्राई. अब मैंने यहाँ पर बहुत क्या सेड तू देख लेना, अभी जो फ्लो में आएगा वो अलग आएगा. ज्यादा हो गया ना. ओके, अब सुनो, यहां मैंने बनाया था ना एक टूवर्ड्स लेफ्ट एंड टूवर्ड्स राइट. सो अब ये देखो, सपोज मैंने ये बनाया COCl2 पॉजिटिव. अब इसके आगे देखो मैंने साइन लिखा D और पॉजिटिव, एंड A के आगे मैंने लिखा एंड द सेम कंपाउंड. सब कुछ सेम है. They have the same molecular formula. They have the same structural formula. They have the same physical properties. They have the same chemical properties. They just differ in their interaction with the light, plane polarized light. This sample bends the plane polarized light towards right by suppose 2 degree, and this sample will bend the plane polarized light towards left by the same degree. So these two compounds, they are sharing a relationship called as enantiomerism. ये एक दूसरे के enantiomers हैं. Am I understood? ठीक है. So नीचे लाइन लिखना, enantiomers have same molecular formulae, comma same physical and chemical properties, same physical and chemical properties. What differ in their behavior with the plane polarized light? What differ in their behavior towards the plane polarized light? Enantiomers have the same molecular formulae, comma, similar physical and chemical properties. What differ in their behavior towards plane polarized light? Niche, the isomer which rotates the plane polarized light towards the isomer which rotates the plane polarized light towards right is dextrorotatory. और उसके लिए ये सिंबल यूज करने हैं दोनों में से एक, स्मॉल d और स्मॉल प्लस. बाय वाले मुझे बताएंगे इस चीज का मतलब? सुनाई, D ग्लिसरल्डिहाइड, L ग्लिसरल्डिहाइड सुने. चलो गलती होगी. अब लिखो, द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट इज डेक्स्ट्रोरोटरी. मैंने लिखा तो था इतना अच्छा करके. एंड द वन विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स left is called as levorotatory, and the symbols are small l, not the capital L. तभी मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा था, but nobody responded. It has to be capital small d and small l, not the capital. अगर capital D लिखोगे सब चेंज हो जाएगा. ये देखो, सुना है? Yes, yes. बताओ यहाँ D means dextro. Yes, sir. No.
सर जो ग्लूकोज है वो राइट साइड पे कैसे जाएगा फिफ्थ कार्बन? नहीं, ग्लूकोज का जो फिफ्थ कार्बन है उस पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे जाएगा। Very nice. So ये D is not, I just want to tell, this D is not for the dextro. Dextro वाला D is small. और जो ये वाला D है, it indicates something. हम करेंगे इसको बायोमोलिक्यूल्स में. Right है? Today I will have to bind up here. मुझे पता है इसी बात का थैंक यू मिलेगा, इसका तो कभी नहीं मिलेगा ना.